এর মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাবো, তাহলে হেভি পেসে থাকে, ঠিক নেই? শেষের দিকে দেখবা এটি একটু পরে দেখবা পেস অনেক হাই হয়ে যেতেছে, ঠিক না? ওই পেসটা মেনটেন করতে লাগবে, ঠিক নেই? হ্যাঁ হ্যাঁ, কতক্ষণ? হ্যাঁ, এটা মানে 5 আওয়ার্স দুপুরে টুপুরে। গুড গুড, তো গুড, যেটা আরো 5-4 আনতে লাগবে, আস্তে আস্তে আসবো। তো এখন 5 to 6 ঠিক আছে, কয়েকদিন গেলে 5 হয়ে যাবে, তারপরে 4 এসে যাবে, 12 আস্তে আস্তে দেখবি, ঠিক আছে? সো দিস ওয়াজ এ ডাউট ইন এক্সারসাইজ কত 17। সো ইন এক্সারসাইজ 17 question number 21, cot x plus tan x equal to 2 cosec x। तो जनरल सॉल्यूशन, ओके। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं इसमें कैन वी मेक इट इन ए সাইন কজে লয়ে যেতে পারি, দেন জেনারেলি সাইন কজে থাকলে একটু ইজিলি চোখে পড়ে, ঠিক না? সাইন কজে থাকলে সাইন কজে থাকলে ইজিলি চোখে পড়ে। সো উইল কনভার্ট ইট ইনটু cos বাই sin প্লাস sin বাই cos, বাট কনভার্ট করলে একটু লাস্টে সলিউশন করার সময় উই হ্যাভ টু বি লিটল বিট কেয়ারফুল, ঠিক তো? সো ইট উইল বি cos স্কয়ার প্লাস sin স্কয়ার and নিচে sin x প্লাস cos x, sin x cos x ডিভাইডেড বাই 2 sin x। এখন ছোট ক্লাসে যে আমরা এরকম ভাবে কাটতে দিতাম sin x দুই সাইডে, বড় ক্লাসে এসব কাটাকুটি আমরা করতে পারবো না, ঠিক নেই? উই ক্যান ক্যান্সেল অনলি ইফ উই নো দ্যাট sin x ইজ নট ইকুয়াল টু 0। যদি আমরা জানতাম যে sin x ইজ নট ইকুয়াল টু 0 তাহলে আমরা কাটতে পারতাম, বিকজ আমরা জানি না। আর sin x ইকুয়াল টু 0 হলে উইল গিভ মি ওয়ান আনসার, বিকজ দ্যাট উইল গিভ মি ওয়ান সলিউশন। তো sin x তো আমি বাদে দিতে পারতাম না, তাহলে ঠিক তো? এই জন্য আমি কি করব, পারবো না, আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই করব। সো ইট উইল বি 2 sin x cos x। এলাকা ছোট ক্লাসের কিছু বাজে অভ্যাস দেয়া উই হ্যাভ টু গেট রিড অফ, ঠিক না? আমরা হয়তো বা ডিসকাসও করছিলাম 10 এরকম থাকলে কাটা যেত না, করছিলাম নি? হ্যাঁ, বড় ক্লাসে উঠলে আমরা এটা কাটি নিলে ছোট ক্লাসে এটি অ্যাকচুয়ালি অ্যাভয়েড করে দিলে বেটার, বা কয়ে দিলে বেটার যে এটি কাটতাছি অক্ষণ ঠিক আছে, বাট বড় ক্লাসে আমরা কাটতে পারতাম না। ওই সময় কাটা যায় কারণ ওই সময় এইসব ক্রিটিক্যাল ফ্যাক্টরগুলো এত দেখা হয় না, ঠিক আছে? তাহলে কি হয়ে যাবে, আইদার অর। সো ইট উইল গিভ ইউ আইদার sin x equal to 0 or 2 cos x equal to 1. Sin x equal to 0 means x equal to n pi. বেশি ঠান্ডা লাগে, বেশি গরম লাগে, কি যে করতে আমি বুঝতেছি, ঠিক আছে? Sin x equal to 0 means it's a horizontal line, so it will give you n pi. And here it will be cos x equal to half, and cos x equal to half means it will give you cos কত ডিগ্রি হাফ রে? cos 60 ডিগ্রি pi by 3। তো cos এর ফর্মুলা কি ছিল? 2n pi plus minus pi by 3। So this one or this one, but we have to cross check, because can I cross check? Because we have changed the trigonometric ratio, তারা যা দিছিল আমরা এটা চেঞ্জ করছি। এখন দেখো, ঠিক আছে, এটা কি আইতেছে, sin x equal to 0 আইতেছে n pi, cosec pi कितना हो जाएगा? এটা তো pi এর মাল্টিপল, ইনফিনিট হয়ে যাবে। সো ইট ক্যান নট বি, ইউ ক্যান নট পুট দিস ওয়ান ইন দ্য সলিউশন, ঠিক না? অরিজিনাল ইকুয়েশনে এটার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই, 30 ডিগ্রি সবাই आंसर दे, each one gives 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको डालने से cosec x your right hand side will be infinite, in fact cot x will also be infinite, ठीक है ना? This will tends to infinity, so therefore this cannot be answer, so your answer will be only this one। I think বইয়ে কি একটা দিয়েছে না দুটোটা দিয়েছে? একটা দিয়েছে, একটার মধ্যে আমরা দেখছি তারা একটু মিস্টেক হয়ে গেছে কোন একটা কোয়েশ্চনে, ওটার মধ্যে কারেক্টেড, ঠিক না? বইয়েরটা কারেক্ট করে নিও, যেইতে গেলে উইল সি দিস ওয়ান, এরকম টাইপের কেস থাকে। বুঝা গেছে? এটা কোন সময় করুন, যে সময় রেশিও চেহারা চেঞ্জ হয়ে যেতেছে, আমি অঙ্ক করতে গিয়া আই হ্যাভ চেঞ্জড ইনটু এ নিউ রেশিও। ওকে, এনি মোর ডাউটস? নো ডাউটস। এরপরে যেটা আমি কইতেছিলাম, এরপর টপিক যেটা আছে প্রপার্টিজ অফ ট্রায়াঙ্গেল, ঠিক না? এটা অ্যাকচুয়ালি বোর্ডেও নাই, যেই মেইনেও নাই, অ্যাডভান্সও আছে বাট ভেরি রেয়ারলি, বাট এটাকে বাইপাস করানোর অন্য রুটও আছে, সলিউশনস অফ ট্রায়াঙ্গেল।
तो इसलिए हम लोग उसमें नहीं जा रहे, ठीक है। हालांकि এখানে যেটা কইছে মনে এটি মনে নরমাল হাইটের না, আর কিছু কিছু ফর্মুলা তুমি ফিজিক্সও পেয়ে নেবে, লেমা থিওরাম sin a by sin b, sin a by a, sin b by b, sin c by c, sin c, ঠিক আছে। তাহলে আমরা যদি নেক্সট যাবো গ্রাফসে, ঠিক তো। গ্রাফস গুলো as such তো কোশ্চেন ছিল এমন কিছু নাই, বাট দ্য গ্রাফস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক আছে। গ্রাফস কি খুব দরকার, graphs of trigonometric ratios. These graphs are very important. বোর্ডের পার্সপেক্টিভে না, বাট যেই জন্য জানা দরকার যে গ্রাফসটা কেমন। গ্রাফস মানে অ্যাকচুয়ালি আমি sin x এর বিহেভিয়ার জানতে চাইতেছি, এন্ড আই ওয়ান্ট টু সি ইট ইন যে ইনপুট চেঞ্জ করলাম, সাপোজ দিস ইজ মাই ইনপুট x and my output is y is equal to sin x. This is the meaning. যেমন sin 30 বইলাম, আউটপুট কত হলো হাফ, -1 বইলাম, আউটপুট কত হলো। So I know that sin x এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হইব, আউটপুট 1, আর মিনিমাম কত হইব -1, ঠিক না। সাপোজ এটা আমি 1 আর -1 এর বাউন্ডারি প্লেস করলাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো ডট 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 দিয়ে রাখো, মানে এটাকে আউটপুট না, এটা জাস্ট আমি মার্ক করলাম ফর, যাতে আমি এর বেশি না যাই, ঠিক তো। তো সাইনের তুমি দেখবা, সাপোজ দিস ইজ পাই, দিস ইজ 2 পাই, দিস ইজ 3 পাই, 0, দিস ইজ -পাই। তো sin x এর এখানে আছে π/2, এখানে আছে 3π/2। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আমার, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইন যে আমার ট্রিগোনোমেট্রি যে ওই কোয়াড্রেন্ট ছিল 4টা, এটা আলাদা আর এটা আলাদা, বুঝছো তো। এটা কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রির মতো, x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস, ওটার সাথে ম্যাচ করলে তুমি দেখবা 0 তে এটার আউটপুট কত, 0। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো π/2 তে sin x এর ভ্যালু কত, 1, so it will be like this 1, এখানে 1 ইউজ করব, দেন π it will come to 0, ঠিক আছে। so this is the way it will behave. আর 0 to π টা কি আসলে পজিটিভ, ইউ ক্যান সি the heights are positive now, ঠিক আছে নি। মানে আউটপুটটা কোন হাইটটা, π/2 তে কত, 1, 0 তে কত, π থাকে, and the height is positive height উপরের দিকে। as we move along, -3π/2 তে -1 হইব, and then 2 pi, okay, so it will be smooth one, ঠিক আছে। আমার তো আটটা তো ক্লিয়ার না, but you can understand, ঠিক আছে। okay, similarly you can understand pi to 2 pi means it is in second and third and fourth quadrant, that's why negative, और 3π/2 मानी ये जगह पे एलेवेटा -1, ठीक है। इससे क्या क्या हमको पता चलता है, we understand, I think যেই ক্লাস আরো ডিটেইলে থাকবো, এখানে জাস্ট গ্রাফটা প্লট করে ধ্যান নিতেছে, কিছু কইছে ডোমেন রেঞ্জ, I will not, यहाँ पर देख सकते हो there are some observations, it is a periodic function, periodic function কারে কয়, it's a periodic function, এটা আমরা ট্রিগোনোমেট্রিতে লাস্ট ডে তো কইছিলাম পিরিওডিসিটি, ঠিক নেই, কি জানি কইছিলাম না, ট্রিগোনোমেট্রি রেশিওর এক্সারসাইজটার নাম কি জানি কইছিলাম না, আরেকটা স্টার্টিং এ যে এটা রোটেট করে, দীক্ষা এটা নাম কইছিলাম, ভুলে গেছি, এখন মনে পড়তেছে না, রোটেশনাল আর কি, যেটা ঘুরতে থাকে। আর যাই হোক, পিরিয়ডিক ফাংশন মিন্স এ ফাংশন হুইচ রিপিটস আফটার এ সার্টেন টাইম। দেখো ইফ আই কাট দিস ওয়ান, যেমন কম্পিউটারে কাট পেস্ট হয় না, যদি আমি এই জায়গাটা কাট করলাম, এই জায়গাটা জাস্ট কাট করলাম, দেন দ্য নেক্সট থিং ইজ জাস্ট পেস্ট অফ দিস ওয়ান, এটারে এনে পেস্ট করে দাও, আবার এটারে এনে পেস্ট করে দাও, ঠিক নেই।
So from 0 to pi, this is known as the period. This is the period of the, what is the, it is a periodic function, and what is the period? The period is here 2 pi, because after 2 pi it is repeating. ঠিক আছে না? 2 pi তাহলে কবে স্যার 4 pi এটারও যদি কাট করতাম তাহলে তো হতো the smallest one, the smallest fundamental block जिसको हम रिपीट कर रहे हैं, that is known the period. ঠিক আছে না? the smallest fundamental block, এটার আমরা যেই তারটু দেখুন, বাট আমি দেখতেছিলাম তোমরা বইতে আর কি কইছে এটা সম্বন্ধে। এটার ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু দেখে রাখো, আর তখন দরকার নেই, গ্রাফটা মনে রাখো, যেইতে উইল ডু ইট ইন little more extension will do. Sin x का maximum and minimum value, it can go up to 1, it can go up to -1. Domain range के दुइटा word आए, I am not mentioning this one now. देखो वो starting में একটা টেবিল আসলো domain range এর, I carefully neglected that one. ঠিক আছে না? একদম স্টার্টিং এ আসলো, because function exercise টা আমি করছি না domain range করলে you will get some confusion, ঠিক না? ওই সময় আমরা করে নাও function exercise. But you should have the idea of what is your sin x look like. ठीक है? Next. नेक्स्ट वन मान लो y इक्वल टू cos x है। क्या है? y इक्वल टू cos x। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर होगा, y इक्वल टू cos x। बाकी हम देखेंगे। cos x का क्या है? cos 0 1 हो जाता है, ठीक है ना? cos 0 climbs at 1, ये वाला 1 में है, so this will climb at 1 and this is minus pi by 2, cos minus pi by 2 0 और 0 में 1 है और pi by 2 में 0 है। ये है cos x का ग्राफ। यू कैन सी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है 0 to minus pi by 2 and this is your first quadrant। फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट है cos पॉजिटिव and then it will go to negative, ठीक है? then पाई में फिर -1 होगा। so लगभग sin x जैसा ही ग्राफ है, the difference is only in थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? sin x 0 से स्टार्ट होता है और cos x 1 से स्टार्ट होता है, बस। बाकी आइडियाज है, ठीक है? बाकी आइडिया क्या है? इट इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, इसका भी पीरियड कितना है? इसका पीरियड को हम यहाँ से यहाँ तक मार्क कर सकते हैं, दिस इज ए पीरियड 2 पाई। सेम पीरियड क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक। यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर टू हियर ऑल्सो, ये भी एक ही बात है, इसको भी कॉपी करके पेस्ट करने से वही आएगा, बट हमको समझ में आ गया दैट पीरियड इज 2 पाई। द मिनिमम फंडामेंटल ब्लॉक दैट आई हैव टू टेक टू रिपीट इज 2 पाई। 2 पाई तक लेके अगर कट पेस्ट करेंगे तो इट विल बी द सेम ग्राफ। ओके, इसका भी मैक्सिमम मिलो मिनिमम मिलो कहाँ से कहाँ तक है? cos x का मैक्सिमम मिनिमम मिलो -1 से लेके +1 तक। ओके, so this is about sin x cos x, और भी है डिटेल्स बट आई एम नॉट गोइंग दैट वन, ठीक है? वो हम बाद के लिए रखा है। दिस इज y इक्वल टू cos x, यहाँ हमने cos x नहीं लिखा, दिस इज y इक्वल टू cos x। ओके, नेक्स्ट ये था y इक्वल टू sin x। अभी अगर इसके लिए हम करेंगे, नेक्स्ट कौन सा है? tan x। tan x के लिए इफ वी प्लॉट, तुम लोग एक अलग से बना लो। tan x के लिए डोंट लेट +1 -1, क्योंकि tan x का तो कुछ भी जा सकता है tan x, ठीक है?
10x में थोड़ा ध्यान देना। 10x में एक चीज चाहिए हमको, वो है 1090 कितना है? इन्फिनिट। ओके, ऐसा कुछ चाहिए होगा 10x के लिए। आई विल शो यू जस्ट अ सेकंड। ड्राइंग कहीं नहीं पूछेगा, ठीक है? ड्राइंग देके घबराना मत। नो वन विल आस्क यू टू ड्रॉ, बट ड्राइंग करने से हमको आइडिया मिलता है। These are some of the black lines that I have plotted in the graph. ये एक्चुअली ग्राफ का कुछ काम नहीं है। दिस विल हेल्प मी टू ड्रॉ द ग्राफ, जैसे +1 -1 के लिए दिया था। इसका नाम है ये सब लाइंस का, जैसे तुम लोग ने टेंजेंट्स तो पढ़े होंगे, इसको कहते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है जो भी है, इस टाइप का एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स और टेंजेंट भाई है, आजू बाजू है दोनों, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। टेंजेंट क्या है? जो एक पॉइंट में टच करता है। एसिम्पटोट से कहता है, एसिम्पटोट भी कहता है यस यू कैन टच मी, बट यू कैन टच मी एट इनफिनिट। एसिम्पटोट इनफिनिट में जाके टच करने अलाउ करता है, मतलब इट विल गो अलोंग, कार्व के एकदम साथ साथ जाएगा, बट इट विल नेवर टच द कार्व। और ऐसे लगेगा कि हाँ टच कर रहा है, बट कहाँ? इनफिनिट दिखेगा नहीं तुमको, बट इट विल ऑलवेज मूव अलोंग दिस एसिम्पटोट्स के बराबर वो चलते रहेगा। इट विल गो वेरी क्लोज टू एसिम्पटोट्स, बट इट विल टच एट इनफिनिटी। टच कर लेगा तो टेंजेंट बन जाएगा। समझ में आ गया? इट्स समथिंग ऑफ दिस फैशन। देखो तो 10x का क्या है? 10 0 0 है, 10 π/2 कितना? इनफिनिटी। 10 π/4 कितना? 1 है। सो इट विल मूव लाइक दिस, टच नहीं होगा। ब्लैक और येलो लाइन कभी टच नहीं होगा, इट विल टच एट इनफिनिट। इसलिए 10 ये कहाँ टच हो रहा है? 1090 इनफिनिटी। इनफिनिटी इज है, मैं हमेशा बोलता हूँ इन्फिनिटी इज अ नोशन। इन्फिनिटी खुद, इन्फिनिटी एक फीलिंग है, ठीक है? इसको कहते हैं फीलिंग्स को हम लोग मैथ्स में कहते हैं नोशन। नोशन मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे अभी 9 10 में तो सब ऐसे हो गया, 2 + 2 4 हो गया, दिख गया सबको। अभी 11 12 में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगा, दिखेगा नहीं कुछ, उसको समझना पड़ेगा कि आगे जाके हो रहा है। दैट इज नोन एज नोशन। जहाँ जाके हमको दिखता नहीं है कि हमको समझना है, वी विल ऑलवेज से फीलिंग्स को समझो, नोशन को समझो, ठीक है ना? फील द मोशन, ठीक है ना? नोशन को समझो। तो इन्फिनिटी एक नोशन है, वो फीलिंग है जो हाँ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, दैट इज इन्फिनिटी। इट्स अ वेरी, जैसे अभी सबको लग रहा है ना कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ वार वार तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो इस टाइप का इन्फिनिटी है, ठीक है? पता नहीं है, होगा कुछ, बट इट विल बी वेरी बिग। दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी। सिमिलरली 10, ये तो 0 से π/2 पॉजिटिव है, 10 के लिए यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट, या फिर ये वाला कौन सा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? माइनस, तो 10 π/2 कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। इट विल रीच लाइक दिस, ठीक है? सिमिलरली 10 पाई कितना है? 0 है। देखो 10 पाई कितना है? 0 है। π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव है। पाई से 3 पाई कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है। ये वाला ग्राफ भी इस टाइप का है। Now you understand what is the graph of 10x. 10x is also तो 10x भी हमको लग रहा है कि पीरियोडिक है कि नहीं है? इज इट ए पीरियोडिक फंक्शन? 10x पीरियोडिक है कि नहीं? पीरियोडिक है, सेम चीज रिपीट हो रहा है। यस, इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन। यस, 10x is also a periodic function. And what is the period of 10x? If I want to find the period of 10x, देखते हैं सबसे मिनिमम कौन सा चीज को लेके कॉपी करने से हो जाता है। If I take this one and then copy and then paste, ये वाला लिया, सेम है, तो क्या है 10x का पीरियड क्या हो जाता है? पाई।
सो इट्स ए पीरियड ऑफ पाई, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू कितना है लेंथ, पाई। ये सब तो दिख रहा है, दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई एंड देन इट इज 0। व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस वन इज 10x का पीरियड कितना है, पाई। 10x का लिमिट कितना है, कहां से कहां तक जा सकते हैं इसका आउटपुट, एक आउटपुट प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी, सो इट कैन गो फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ 10x। साइन कॉस 10 हो गया और 3 रह गया, क्या क्या रह गया, कोसेक सेकंड। वेरी गुड, पहले कॉट कर लेते हैं, इसी को कॉपी करने से कॉट आ जाएगा, सो कॉट विल बी गुड फॉर अस, मतलब इसी में हो जाएगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन किच्छु नहीं, जस्ट हल्का ड्राइंग। यानी जेई में हम इस ग्राफ को फिर से प्लॉट नहीं करने से भी ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ रहेगा जो मटेरियल रहेगा। विल सी सम मोर ऑब्जर्वेशंस। अभी यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हम बहुत कम लिखा है, 2-3 ऑब्जर्वेशंस है राइटिंग। सेम ग्राफ में अभी हजारों ऑब्जर्वेशंस विल कम व्हेन वी विल गो इन जी। अरे इसी ग्राफ को देखेंगे, देखना चाहिए क्लास में, अरे इतना कुछ दिख गया, बोर्ड में तो दिखा नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट वन बिकॉज बहुत कुछ नहीं किया हम लोग, इसलिए अभी वी आर कीपिंग दिस वन असाइड। ठीक है, इसमें हम मॉडिफाई कर लेते हैं, इट विल बी नाउ cot x एसिम्पटोट्स तो उसमें भी रहेगा, बस इमोशन तो उधर भी है। ये टेंजेंट और ट्रिगोनोमेट्री वाला टेंजेंट अलग है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री में भी टेन थीटा को टेंजेंट थीटा, टेन थीटा मतलब क्या है, टेंजेंट थीटा है, वो रेशियो है। ये टेंजेंट और टेंजेंट दोनों डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान देना। कॉट में बेटा थोड़ा सा ये सब हिल गया, समझ में आ रहा क्यों हो गया, यू विल अंडरस्टैंड कहाँ कॉट इन्फिनिटी होता है। ठीक है, समझ में आया कहाँ इन्फिनिटी होता है, जैसे 10, 90, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 ये सब में था, कॉट है 0 में, पाई में, ये सब जगह में कॉट इन्फिनिटी है। अभी अगर कॉटेक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे तो सबसे पहले देखो 0 टू पाई, 0 टू पाई बाई 2 क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 टू पाई क्या नेगेटिव क्वाड्रेंट है। 0 में इसका वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, इट विल कम टू इन्फिनिटी एंड देन इट विल मूव लाइक दिस। ठीक है, ये पॉजिटिव है, फिर पाई में और नेगेटिव चला जाएगा, सो इट विल फॉलो द ट्रेंड। लगभग 10x जैसा ही है, बस थोड़ा सा ट्रेंड हिल गया, ठीक है ना। वो था, ये थोड़ा 13 हो गया, वो 13 नहीं होगा। ये है कॉटेक्स। ये पीरियोडिक है कि नहीं, हाँ ये भी पीरियोडिक है। इसका पीरियड जानने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक कहाँ होगा, कहीं पे भी ले सकते हो, सो दिस वन विल बी द स्मॉलेस्ट ब्लॉक, तो 0 के आज यहाँ पर भी ले सकते हो, दिस इज ऑल्सो। तुमको सिर्फ लेंथ दिखना है, कहाँ से कितना, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पर नहीं, कितना लंबाई है, पाई से लेके 0 से लेके पाई तक पाई। कोई इसको भी कह सकता है सर ये भी है, हाँ ले सकते हो, 2 पाई माइनस पाई, हमको तो सिर्फ लेंथ चाहिए। तो कितना है इसका पीरियोडिसिटी, कितना है, पीरियड है पाई। इसका भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। दिख गया, इधर में भी ड्रॉ कर सकता है, बीच में
बस ये चलते रहेगा। sin x वाला ग्राफ में वी आर मॉडिफाइंग इट टू मेक इट cosec x। तुमको तो फिर से बनाना पड़ेगा। डोंट प्लॉट द sin x ग्राफ को मत बनाओ। अच्छा 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 बनाना पड़ेगा, यहाँ पर तो है। सो sin x को बना लो, ठीक है ना। प्लॉट द sin x, हाँ सेम sin x को एक बार बना लो, फिर देन विल सी द cosec x। या फिर sin x के ऊपर दूसरा काली इंक अगर है तो दूसरा इंक से तुम cosec बना लो, तो जरूरी नहीं होगा एक ग्राफ में दोनों आ जाएगा। sin x तो ऑलरेडी है, दूसरा इंक है, ब्लैक इंक है, उसके ऊपर cosec बना लो। दूसरा इंक से है, नहीं है, है तो दूसरा इंक से sin x के ऊपर ही बना लो, नहीं तो पूरा प्लॉट करना पड़ेगा। আরেকটা কালি নিয়ে sin x এর উপরে একটা লো cosec x, এনি sin x রাখছো তুমি। ঠিক আছে, ভালোই আছে sin x, মিলতেছে sin x এর মতোই লাগতেছে cosec x, ঠিক তো? তাহলে আর তুমি বানাবে কেমন? তুমি আবার নতুন করে রাখতে হবে, এটার মধ্যে cosec x আগে হইতো না। লেখা আছে না, আছে লাগলে তোমার এই sin x এর উপরে cosec হতো না, তুমি আলাদা করে আঁকো, এটার উপরে cosec আঁকতে পারতে না, জায়গা নেই। ওই যে sin আঁকছো এটা cosec এলে মরে যাবে। ঠিক আছে, cosec का ग्राफ व्हाट आई विल डू, आई विल प्लॉट विद इट ब्लू काइंड, ब्लू विल बी गुड और रेड। cosec वाला ग्राफ आई विल प्लॉट इट रेड। मतलब sin x तो है अपने पास, cosec के लिए देखना, मैंने फिर से एसिम्पटोट्स को ड्रॉ किया। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन द एसिम्पटोट्स, दीस आर एसिम्पटोट्स जो स्ट्रेट लाइंस है, नॉट टेंजेंट्स। एसिम्पटोट्स क्या था? जो वही टेंजेंट जो टच करेगा इंफिनिटी में। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x का वैल्यू कितना था? यू अंडरस्टैंड sin x का वैल्यू कहां से कहां तक था? -1 से 1। तो cosec का वैल्यू क्या हो, कहां से कहां तक होगा? यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, दुनिया में जितना भी फ्रैक्शन है, नंबर लाइन, इफ यू सी द नंबर लाइन, तुम अगर एक बार नंबर लाइन को देखोगे, मान लो ये है मेरा नंबर लाइन 0, ये है 1, ये है -1, ये है 2, ये है -2, और भी है आगे। दुनिया में जितना भी फ्रैक्शन है सबका जगह एक ही जगह है, सब एक ही जगह में बैठता है। कहाँ पर है? नंबर लाइन में। कहाँ पर?
दुनिया पर जितना भी फ्रैक्शंस है उसका जगह एकदम फिक्स है, वहीं पर ही रहता है, कहीं और जगह में नहीं रहता। वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसको तो कितना जरूरत है, यू नेवर अंडरस्टैंड। मतलब इतना छोटा कॉन्सेप्ट है, बट इसको दे हैव यूज्ड इट सो ब्यूटीफुली इन सो मेनी ओकेशंस। तुम्हें दिखेगा ये 2 साल में से कितना सुंदर से इसको दिखाया। तो दुनिया भर का फ्रैक्शन कहाँ रहता है? फ्रैक्शन मतलब क्या है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अगर बड़ा हो जाएगा तो देन इट इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इट्स बिकम ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर मिक्स फ्रैक्शन। So if I am talking about fraction, that means I am talking about proper fraction. ठीक है ना? प्रॉपर नहीं बोलने से भी, फ्रैक्शन बोलने से भी अंडरस्टैंड दैट ही इज टॉकिंग अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 से ऊपर होगा कभी? तो इसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा 0 से 1 तक। तो दुनिया भर का जितना फ्रैक्शन है सब इधर बैठा हुआ है। यहाँ है पॉजिटिव फ्रैक्शन और यहाँ है नेगेटिव फ्रैक्शन। ये तो यही 2 ही जगह है दुनिया भर का फ्रैक्शन का। ये फ्रैक्शन इधर नहीं तो इधर, बस दुनिया भर का फ्रैक्शन। जैसे दुनिया भर का यहूदी लोग कहाँ बैठा दिया? इजराइल में। दुनिया भर का ज्यूज लोग कहाँ बैठ गया? जाके इजराइल में बैठ गया। वही एक ही जगह है उसका, और कोई ज्यूज बोल के कोई कंट्री नहीं है। लेकिन इसलिए तो इसका फाइट करते रहता है, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और कहीं जगह नहीं है, कोई कंट्री नहीं है जो सिर्फ यहूदी लोग के लिए है। ज्यूज पीपल के लिए सिर्फ इसराइल है। ऐसे फ्रैक्शन के लिए कहाँ से कहाँ तक है? -1 से लेके 1 तक। अब अगर तुम यहाँ से निकाल दोगे उसको तो कहाँ जाएगा बेचारा? तो इसलिए हमेशा याद रखना, दुनिया भर का फ्रैक्शन मेरा -1 से 1 के बीच में है। और sin x भी, sin x का आउटपुट भी यहाँ पर लाई करता है, क्योंकि sin x कहाँ से कहाँ तक था? -1 से 1। तो हमको दिख गया कि sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा? यहाँ से यहाँ तक। मतलब sin x का वैल्यू फ्रैक्शन हो सकता है, साथ में 1 भी हो सकता है। sin x का एडवांटेज क्या है? इट कैन टेक 0 also, it can take 1 also, it can take -1 also. In addition to this, all fractions in the world, जितना भी fractions है सबको ले सकता है, साथ में -1, 0 और 1 को लेके sin x आउटपुट दे सकता है। अब कोसेक क्या है? sin x का उल्टा है। तो दुनिया भर का जो फ्रैक्शन, इसको अगर उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? फ्रैक्शन का उल्टा क्या होता है? कोई भी एक फ्रैक्शन उठाओ, बोलो एक फ्रैक्शन बोलो, कोई भी बोलो। 4/5। इसको उल्टा कर दो, कितना हो गया? कितना आ गया आंसर? 1.25 डिवाइड करने से। कुछ और फ्रैक्शन बोलो। 5/10 उल्टा कर दिया, कितना आ गया? 2। तो मतलब क्या हो रहा है? दुनिया भर का अगर फ्रैक्शन को हम उल्टा कर देंगे, जैसे इसको उल्टा कर दिया, ये कहाँ चला जाएगा? इधर। इसको उल्टा कर दिया, कहाँ चला जाएगा? तो बाहर चला जाएगा। ठीक है ना? 1 से ज्यादा हो गया था, 5/10 को उल्टा किया था तो 2 हो गया था। तो जो भी होगा, मतलब यहाँ पर जैसे पॉपकॉर्न जैसा होता है ना, जैसे तुमने यहाँ पर मान लो आग लगा दिया, यहाँ पर आग लगा दिया, फायर लगा दिया, ठीक है ना? तो क्या होगा? यहाँ से निकल को इधर निकल जाएगा, उधर निकल जाएगा। तो ये उल्टा कर देना मतलब फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया, तो जो जिस जगह में वो बैठा हुआ था उसका बाहर चला जाएगा, वो इधर 1 के बाहर चला जाएगा, इधर -1 के बाहर चला जाएगा। तो मेरा कोसेक का रेंज कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा? सो माई कोसेक विल गो टू 1 से ऊपर, नहीं तो -1 से नीचे। तो ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे हम कोसेक को, इस हिसाब से नहीं लिख पाएंगे। तो कोसेक का रेंज अगर लिखना है हमको तो हम कैसे लिखते हैं कि कोसेक x इज लेस देन -1 और साथ में कोसेक x इज ग्रेटर देन 1, आइदर -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा। ठीक है? अच्छा, ये बात है। तभी ग्राफ में देखते हैं, इसका हाइट कभी 1 से छोटा नहीं होगा, और उधर में भी -1 से छोटा नहीं होगा। नेगेटिव साइड में -1 से छोटा नहीं, बड़ा, मतलब -1 से तो बड़ा हो जाता है। तो हाइट विल बी इधर 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 जो 1 है इसके ऊपर होगा, यहाँ जो -1 इसका नीचे होगा। समझ में आ रहा है? हाइट। तो कोसेक का हाइट क्या होगा? 1, ये तो 1 है, π/2 में 1 है, तो 1 को उल्टा करने से क्या होगा? 1 ही होगा। तो कोसेक का π/2 भी 1 ही रहेगा। और बाकी जो फ्रैक्शन है इसको उल्टा करोगे तो बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 0 है तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है ना? sin x 0 है, उल्टा करने से +∞, sin x पाई है, उल्टा करने से +∞, दोनों इन्फिनिटीज में जाके मिलेगा। समझ में आ रहा है? और π/2 में तो 1 1, और बाकी जगह फ्रैक्शन इसको उल्टा कर दिया 1 से ऊपर हो गया।
इधर में भी सेम, समझ में आ रहा है? क्योंकि -1 है, -1 उल्टा करोगे -1 ही रहेगा, उसके बाकी सब फ्रैक्शन। अच्छा, तो हमको समझ गया, क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आया, कुछ आया समझ में? ना, नहीं। हमको कोसेक एक्स का ग्राफ दिख गया, बहुत अच्छा बात है। कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन से, ज़्यादा तो हम नहीं करेंगे दोनों टच। तो कोसेक एक्स क्या है? साइन एक्स का सर के ऊपर टोपी बांध दो, कोसेक हो गया। सिमिलरली कॉस के ऊपर सर के ऊपर टोपी बांध दो, सेक बन जाएगा, ठीक है ना। साइन एक्स के ऊपर देखो ना, तुम्हारा आगे साइन एक्स वैल्यू नहीं लेटा, हाँ? तो कोसेक एक्स पीरियोडिक है कि नहीं? ये पीरियोडिक है कि नहीं, बोलो तो। इज इट ए पीरियोडिक? क्या ये पीरियोडिक है? नहीं है? चलो, बड़ी बढ़िया है। दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कॉपी करने से पेस्ट हो जाएगा, सेम चीज है ना, सेम चीज को पेस्ट कर रहा है बार बार। क्या होगा? पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक पीरियड है, ये वाला, इसको कॉपी किया, बैठा दिया। बेसिक विजुअलाइजेशन। तो क्या है रेंज? 2 पाई। क्या है पीरियड इसका? 2 पाई। इसका भी पीरियड 2 पाई है, और ये तो हमको दिख गया ही है कोसेक एक्स। बाकी तो विल सी इन जेईई क्लास और सम मोर नाइस ऑब्जर्वेशंस। बट हमको फीलिंग आ गया, ठीक है ना। क्या फीलिंग आ गया कि कोसेक क्या होता है? साइन के ऊपर टोपी बैठा दो, दोनों तरफ से, सर से नीचे की तरफ। बस अभी तो कोसेक में भी टोपी बैठा देंगे हम, क्या सेक में। सेक में भी अगर टोपी बैठाएंगे तो जरूरी नहीं है और बाकी सब प्लॉट करने के लिए। आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। जैसे हम ये सेक एक्स के लिए कर रहे हैं, ये ऑरेंज कलर या फिर रेड कलर जो भी बोलो, वो सेक एक्स के लिए, तो तुमको दिख जाएगा ये कैसा है। हम और ये सब नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, एसिम्पटोट्स आई एम नॉट प्लॉटिंग, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर दी, ठीक है। इस टाइप का हो जाएगा सेक एक्स। अगर चाहिए एसिम्पटोट्स, नहीं सब कुछ एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर दो, तो इस टाइप के एसिम्पटोट्स इधर एक, इधर एक, इधर भी, सॉरी, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा। These are asymptotes. You understand what is the meaning of asymptotes? We'll see in details, बाद में देखेंगे। So these are the asymptotes we have, ठीक है। So this is your cosec x. तो कोसेक का रेंज देखते हैं हम लोग। कोसेक का भी रेंज, सॉरी सेक, सेक का भी रेंज वही होगा, क्योंकि दुनिया भर का फ्रैक्शन है, उसको उल्टा करना है, तो -1 से नीचे चला जाएगा, या फिर सेक एक्स 1 से ऊपर चला जाएगा। ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, यस पीरियोडिक फंक्शन है। इसका भी पीरियड कहाँ है? इसका भी पीरियड यू कैन से, इसका भी पीरियड तुमको दिख जाएगा ब्लू कलर में, यहाँ से यहाँ तक। दिस इज ए पीरियड व्हिच इज अगेन 2 पाई। ये वाला, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, सो इट इज आल्सो 2 पाई, ठीक है। तो हो गया, सारे 6 का 6 ड्राइंग हो गया। थोड़ा क्लमजी हो गया, नहीं क्लमजी नहीं है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा। तो इससे अभी कोई लास्ट में देखेगा तो इट विल लुक क्लमजी, लेकिन हम लोग तो धीरे धीरे इसको बिल्डअप किया, तो हमको तो इतना क्लमजी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। गुड, मेरे को तो नहीं लग रहा, पता है तुम लोग को भी नहीं लग रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। कुछ ऐसा है कि ग्राफ ऑफ ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, इतना जल्दी आ गया। चलो साइन 3x के क्वेश्चन देखते हैं। साइन 3x का ग्राफ कैसे होगा? ये तो साइन x का ग्राफ था, cos x sec x। 3x का ग्राफ मींस आई एम कमिंग टू एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज है ये? एक्सरसाइज 19। क्वेश्चन नंबर 1, I guess. They have asked you to draw the graph of y equal to sine
2x ना, या फिर sin 3x 3x। ये जो इनपुट है उसको 3 टाइम्स कर रहे हैं लोग, ठीक है। कैसे होगा? नॉर्मल sin x तो आप लोगों को पता है क्या होता है, अभी उतना स्ट्रेट करने का जरूरत नहीं ना, चलो कर लेते हैं, फिर भी देखने में सुंदर है। देखो साइन एक्स का आपने को पता है 0 π/2 π/3 ये सब पता है, ठीक है ना। 0 π/2 पाई ये सब मार्किंग हम मान लो साइन एक्स के लिए कर रहा था। किसके लिए कर रहा था? साइन एक्स के लिए। लेकिन अभी क्या है, देखो x का वैल्यू जब तुम 0 डालोगे तो 0 मिलेगा साइन को, जब तुम x का वैल्यू 0 डालोगे तो साइन को क्या मिलेगा अंदर में? साइन को, साइन विल टेक 0 ओनली। 3 × 0 उसको 0 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब करोगे 3 मल्टीप्लाई होने के बाद साइन को मिलेगा। डायरेक्ट जो डालोगे वो साइन को नहीं मिलेगा। साइन को क्या मिलेगा? व्हाट इट विल गेट? साइन को 3 × तुम जो डालोगे, तुम 0 डाला तो साइन को 3 × 0 क्या मिला? साइन 0 मिला, व्हिच इज गुड। जब तुम 3 × π/3 डालोगे तब साइन को क्या मिलेगा? अच्छा, तो जो नॉर्मल साइन पाई वाला आंसर था, वो नॉर्मली साइन पाई कितना होता था? 0। वो कहां पर मिल जाएगा? π/3 डालने से उसको फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई माय ग्राफ विल लुक लाइक नाउ। ये सब देख के फायदा नहीं है, क्योंकि ये पुराना वाला अभी तो चलेगा नहीं। तो मतलब हमको दिख गया कि इफ आई पुट π/3, अगर मेरा इनपुट π/3 हुआ तो sin x इसको पाई मानेगा, क्योंकि π/3 होगा तो साइन के अंदर पाई चलेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? और बीच में और π/2 कहां पर है वो देख लेते हैं। π/2 कहां होगा? जब तुम डालोगे साइन π/6 डालोगे तब साइन को π/2 दिख जाएगा। समझ में आया? तो π/6 जहां पर है, यहाँ पर उसको π/2 जैसा लगेगा, साइन एक्स को लगेगा उसको π/2 मिल गया, लेकिन तुमने दिया π/6। समझ में आ रहा है ना? तुमने दिया π/6, लेकिन साइन एक्स तो इसको साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो साइन एक्स उसको ऐसा लगेगा कि उसके अंदर देखो तुमने दिया π/6, लेकिन साइन एक्स क्या मिल रहा है? उसको क्या मिल रहा है? π/2, 3 मल्टीप्लाई हो गया, तो साइन एक्स तो π/2 जैसा बिहेव करेगा। π/2 मतलब यहाँ पर 1 था, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा π/3, दूसरा क्या हो जाएगा? π/3, फिर और एक π/3 आएगा 2 π/3, ये होगा 3 π/3, मतलब पाई जो भी है। सो योर ग्राफ विल लुक लाइक नाउ। सुंदर से बना जाएगा, ठीक है। 2 π/3, ये 3 π/3 which is means π/3। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? अरे यार, ये वाला -π/3। नॉर्मली ये क्या होता है? 0 to π होता था। नॉर्मली sin x का ग्राफ देखना 0 π/2 π होता था, 0 to π। तो अभी ये क्या थोड़ा श्रिंक हो गया, और समझ रहा है ना। तो ये भी हम देखेंगे जेई वाला क्लास में। अगर x के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तो ग्राफ क्या हो जाता है? श्रिंक्स। जो ग्राफ है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, पहले छोटा श्रिंक चिपके जाएगा। जब लेट अस अंडरस्टैंड दिस। नॉर्मली अगर ये नॉर्मल ग्राफ होता तो का पाई में जाके होता ना, इधर होता। देखो अगर ये मान लो यहाँ पर x नहीं होता, 3 नहीं होता, तो कहां पर जाके? तो sin x ऐसे होता। अभी ये श्रिंक हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखो पाई है, ओरिजिनल पाई कहां पर है? यहाँ पर। तो अगर 3 मल्टीप्लाई नहीं होता तो sin x ऐसे आता। अब जल्दी जल्दी आने लग गया। हाइट सेम ही है, हाइट थोड़ा मैंने ज्यादा ड्रॉ कर दिया, हाइट सेम ही है, वही वाला हाइट है। ठीक है, हाइट एक ही है, हाइट इज सेम बट इट इज कमिंग वेरी फास्टर। तो 3 को मल्टीप्लाई करने से ग्राफ क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग ए ग्राफ बाय इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई करने से इट गेट्स श्रिंक। अब ये इनपुट अगर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता, जैसे मान लो इसका मीनिंग ये है y इज इक्वल टू मान लो
साइन के एक्स, साइन नहीं हो के ये कुछ भी हो सकता था, कॉज या कुछ। अगर के ग्रेटर देन 1 है देन इट विल श्रिंक, छोटा हो जाएगा। अगर के लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, देन इट विल एक्सपांड, तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर x/2 होता तो तुम पाई देने से उसको पाई/2 मिलता, 2 पाई देने से पाई, वो थोड़ा और लेट होता, ठीक है ना। तुम पाई देने से अगर मान लो ये 1/2 होता है के का वैल्यू, तुम जब पाई दोगे तब वो पाई/2 होगा, तब वो यहाँ जाके हाइट होगा, फिर आगे जाके गिरेगा और स्लो आएगा, समझ में आएगा। तो इनपुट जो है, इनपुट के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो फटाफट ग्राफ आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग, जल्दी जल्दी आ जाना वैल्यू। और अगर कुछ फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ का आंसर जो आता है बहुत लेट आता है, ठीक है। क्लियर है ये। फिर क्या था इसमें, और एक है 3 sin x। 3 sin x कैसा हो जाएगा, सेकंड वाला देखो। थ्री sin x का क्या है ग्राफ, ठीक है। तो 3 sin x का मतलब क्या, इनपुट जो मिलेगा वही मिलेगा, लेकिन अभी क्या हो गया, जो इसका आउटपुट क्या था, 1 था, जैसे पाई/2 में इसको 1 मिलता, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, 3 मिल जाएगा, तो आउटपुट जो है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले जो अपना हाइट था 1 से 1 तक, हाइट इसका 1 से -1 तक होता था, अभी वो कहां तक पहुंच सकता है, 3 से, तो ये इतना हाइट में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आएगा ग्राफ, समझ में आना। तो इसका हाइट बढ़ जाता है, ये सेम ही रहता है, ये ना स्ट्रिंग होता है, इनपुट को तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ, पाई/2 मिलेगा तो उसको पाई/2 ही मिलेगा, पाई देने से पाई मिलेगा। तो पीरियड, अच्छा पीरियड भी चेंज हो जाता है, जैसे इसमें देखो पीरियड चेंज हो गया। पहले नॉर्मल sin x का पीरियड कितना था, पहला वाला ग्राफ में देखो, नॉर्मल sin x का पीरियड कितना है, 2 पाई। अभी यहाँ जो है इसका पीरियड कितना है, जो क्वेश्चन से इसका पीरियड कितना हो रहा है, इफ यू कैन सी, यहाँ से यहाँ तक इसका पीरियड है 2π/3, तो पीरियड भी घट जाता है क्योंकि अभी जल्दी जल्दी आ रहा है आंसर, और जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतना घट जाता है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 डिवाइड हो गया, पीरियड फास्ट आने लगा, ठीक है ना। तो पीरियड भी चेंज हो जाता है बिकॉज इट इज कमिंग फास्टर। यहाँ लेकिन पीरियड सेम ही रहेगा, यहाँ सिर्फ हाइट बढ़ जाएगा, लंबा हो जाएगा। यहाँ होता है इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, ठीक है ना। 3 से मल्टीप्लाई के ज्यादा होगा 1 से, देन इट विल बी इलोंगेटेड, खींच के लंबा कर दिया, ऐसे नहीं खींचा, ऐसे खींचने से होता है स्ट्रिंग कैन एक्सपांड, स्ट्रिंग एक्सपांड, और ऐसे करने से इलोंगेशन एंड कॉम्प्रेशन, समझ में आ रहा है। यहाँ से इलोंगेशन भी बोलता है, बट जनरली हम लोग एक्स एक्सिस में स्ट्रिंग और एक्सपांड ये बोलते हैं, एक्स एक्सिस में फुल रहा है, ऐसे ऐसे अगर मोटा हुआ तो मैं एक्सपांड हुआ, ऐसा अगर छोटा होगा तो आई एम श्रिंकिंग, ऐसे अगर लंबा हो गया मैं इलोंगेशन, ऐसे अगर छोटा हो गया मैं कॉम्प्रेस, मेरा हिसाब से ध्यान देना, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, 3 तक चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़ेगा, ये इस टाइप का बढ़ जाएगा। इफ माई ड्राइंग इज, ये वाला ज़्यादा हो गया ना, इधर वाला एक बार में नहीं करना चाहिए था, तो मिटाएंगे भी तो एक ही बार में। -3 यहाँ पर होगा ना, इस टाइप का बनेगा। समथिंग ओरिजिनल ग्राफ कहाँ था, अगर मान लो कि ओरिजिनल sin x देखना है हमको, y = sin x, तो उसका ग्राफ क्या था, उसका ग्राफ था यहाँ से यहाँ तक, पीरियड सेम है लेकिन उसका हाइट था 1, पीरियड वही है, पीरियड कितना है 2π, पीरियड देखो दोनों के लिए पीरियड सेम है, इसमें पीरियड का अंतर नहीं होता है। ये सब चीज थोड़ा और ध्यान डिटेल में हम लोग देखेंगे ग्राफ में, जेई में, बट इसमें क्योंकि है तो इज गुड, तुम कुछ ड्रॉ करो, देन यू विल अंडरस्टैंड कैसे बड़ा हुआ कैसे छोटा हुआ।
इसको हम लोग कैसे, जैसे मान लो y इक्वल टू जनरल केस लिखेंगे, साइन के जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर k मान लो आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, साइन x तो आउटपुट था, अंदर में मल्टीप्लाई नहीं हुआ, बाहर में मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या होता है, इफ इट इज मल्टीप्लाइंग आउटसाइड k ग्रेटर देन 1 होने से इट इज इलोंगेशन, k less than 1 होने से इट इज compression. Elongation and then compression. Okay, now I think you can do, try करो तो I will explain. थर्ड वाला करो, फिफ्थ वाला ना, थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाला तो साइन है, सब साइन साइन हो गया। फोर्थ एंड फिफ्थ वाला करो, 4 5th एंड देन 7, 4 5 7, तीन ड्राइंग को आज ड्राइंग में खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी विल बी योर होमवर्क, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर जैसे ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हुआ तो यू सॉल्व ऑल ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। हम लोग यहाँ से मिसलेनियस करेंगे, मिसलेनियस बोल के एक चैप्टर होता है हर एक एक्सरसाइज के बाद, विल ट्राई टू डील दैट वन। जैसे यहाँ पर चैप्टर 3 है अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, तो चैप्टर 3 हम लोग 43 के बाद, अरे पेज नंबर 43 यहाँ पर लिखा है 207, अच्छा सामने, सॉरी, एक्सरसाइज तुमको खुद से करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद इफ यू गो टू एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद, जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ, यहाँ से देखो मिसलेनियस चालू हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया, 3 एक्सरसाइज है, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस, ठीक है ना। डाउट होगा तो विल सी, नेक्स्ट दिन दिखाना है कि एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, जो जो डाउट है, ठीक है। मिसलेनियस का एग्जांपल भी तुमको करना है, ठीक है। स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये मिसलेनियस, दिस इज, इसमें थोड़ा टिपिकल, इसमें स्टैंडर्ड आप कर देता है एनसीईआरटी, ठीक है। ये करना ही करना है बोर्ड के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ स्कूल एग्जाम्स ऑल्सो। तो हम कहते हैं कि मिसलेनियस को अलग कॉपी में करने के लिए, क्लास 11 में चलो अलग करने से होगा, लेकिन 12 में तो अलग चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में इसी को रिवाइज करना होगा, बोर्ड एग्जाम में बाद में तुमको ढूंढ के नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और बाद में एग्जाम के टाइम में इतना तो कर नहीं पाओगे, जो किया हुआ एक कॉपी में होगा, डाउट होगा तो उठा के देख लिया, इसलिए मिसलेनियस को एक अलग कॉपी में रखना, इट इज वेरी मैंडेटरी, ठीक है। 11 में चलो स्कूल है, फिर भी कर लेना, 11 से प्रैक्टिस कर लो, एक अलग कॉपी में एनसीईआरटी मिसलेनियस को रखो, बाकी एनसीईआरटी कहीं पे भी करो, नॉर्मल होमवर्क कॉपी में, जो आरएस अग्रवाल का होमवर्क कॉपी उसमें कर लो, बट मिसलेनियस के लिए एक अलग कॉपी मेंटेन करो। এটা কি হয়ে যাবো এটা স্ট্রিং কেমন এক্সপান্ড দেব না x/2 তো মানে 1/2 হলে কি হয়, এক্সপান্ড হয়। k গ্রেটার দেন 1 হলে না श्रिंक হয়, k लेस देन 1 ना। अभी इनपुट बहुत स्लो आएगा ना, आउटपुट अभी तुमको जो मिलेगा y इक्वल टू साइन x/2, अभी तुम पाई डालने से उसको पाई/2 मिलेगा, ठीक है ना। तुम देखो 0, मान लो ये पाई है, ये मेरा 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये माइनस पाई है, तुम आगे पाई दोगे तो साइन को क्या मिलेगा, इफ यू पुट पाई हियर साइन विल टेक इट एज पाई/2, ठीक है ना। साइन को बहुत लेट मिल रहा है, नॉर्मली पाई/2 देने से पाई/2 मिल जाता है, लेकिन अब पाई देने से पाई/2 मिल रहा है, बहुत आगे जाने से फिर जाके उसको वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पर जाके साइन को पाई/2 का वैल्यू मिलेगा। नॉर्मली क्या होता था, ग्राफ ऐसे होता था 0 से पाई/2 पर, अभी लेट चलेगा। समझ में आ रहा है क्यों लेट चलेगा, ये दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर वैल्यू डाल के देखो, एक एक करके वैल्यू लिखो, पाई/2 में वैल्यू कितना होगा, पाई देने से इसका वैल्यू कितना है 1, तो मार्क करो। तुम यहाँ पाई दो तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई/2, साइन पाई/2 1, तो मतलब पाई देने से हमको 1 मिल रहा है। सबसे पहले 0 देना, 0 देने से 0, फिर पाई दिया, फिर 2 पाई दो, 2 पाई देने से क्या हो जाएगा, साइन को क्या मिलेगा 2 पाई/2, मतलब पाई 0, तो 2 पाई देने से 0 हो गया। तो ये सब मार्क करो ग्राफ में, 0,0 ये वाला है, पाई, 1 यहाँ पर है,
2π,0 यहाँ पर है। तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कैसे होगा, ठीक है ना। तुम 2-3 पॉइंट मार्क करने से भी विल गेट इट, ठीक है। एक बार बाद में तो रिपीट ही होते रहेगा स्ट्रक्चर से ही। एक दो वैल्यू बिठाओ, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग जैसे ग्राफ प्लॉट करते थे ना क्लास 9-10 में ऐसे किया था ना, एक्स वाई बोल के, ठीक है ना। ऐसे बोल के देखो, जहाँ अगर x को 0 दिया तो y को 0 मिल रहा है, x को पाई दिया तो y को 1 मिल रहा है, x को 2 पाई दिया तो y को 0 मिल रहा है। ऐसे करके 2-3 ग्राफ प्लॉट करो पॉइंट, देन यू मार्क, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। पूरे गुण डरे 7 একটাই গ্রাফ হবে, মানে একই এক্সিস में cos x भी बनाओ, दोनों बनाओ। ऑल अबाउट y इक्वल टू cos x। और एक क्या था, उसको दूसरा इंक से ड्रॉ करते हैं। और एक क्या था, y इक्वल टू cos 2x। इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। मान लो समझ में नहीं आ रहा है हमको, हाँ तो 0 में कितना है, cos 0 कितना है 1, तो 0 में तो 1 होगा। फिर π/2 बिठाते हैं, π/2 में क्या होगा, cos π क्या है -1, फिर -π/2 बिठाते हैं, ठीक है। -π/2 बिठाने से क्या होगा, -π मतलब क्या होगा, वही है, ठीक है ना। और क्या बिठा सकते हैं हम लोग, पाई बिठा सकते हैं। पाई में क्या होगा, 2π मतलब क्या हो जाएगा 1। यू गॉट इट। ये सब वैल्यू पता चल गया। 0 तो पता है, π/4 डालने से 0 आएगा, π/4 डालने से क्या होगा, cos π/2 0। सो मार्क ऑल दिस पॉइंट। 0 में 1 तो ये वाला है 0,1। ऐसे भी हमको समझना चाहिए था कि 2 है बोल के ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी आ जाएगा। 0 1 है, π/2 में कितना है इसका -1, तो यहाँ पर उसका -1, π/2 -1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। फिर क्या है, -π/2 में -1 यहाँ पर, फिर क्या है, पाई में -1, पाई में +1, फिर क्या है, π/4 में 0। अच्छा, π/4 यहाँ पर है, यहाँ पर 0 है। फिर वहाँ होगा -π/4 में 0। अच्छा, तो समझ में आ गया तुमको क्या होगा ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। कुछ इस टाइप का समझ में आ रहा है। सो इट इज नाउ, देखो cos x ये था और लाल वाला cos x क्या है, श्रिंक हो गया, दोनों तरफ से श्रिंक हो गया ना, ये थोड़ा जल्दी जल्दी आ रहा है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ श्रिंकिंग एंड एक्सपांडिंग, ठीक है। नॉर्मल cos x था ये, फील आया इसका। ऐसा कि कोई भी ना बोर्ड में ना जेई में तुमको ड्रॉ करने देगा ना कुछ होगा, बट यू हैव टू फील, ठीक है, क्या हो रहा है। उसके बाद वंस यू अंडरस्टैंड द ग्राफ, उसके बाद तो आगे बहुत काम है, ठीक है।
यहाँ पर अपना ग्राफ खत्म हुआ। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी नया टॉपिक्स नहीं करके एनसीईआरटी मिसलेनियस के एक दो क्वेश्चंस वी कैन टेक। सो दिस इज योर एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा था, ट्राई कर रहे हो हैं, करो तो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 2 cos A cos B है किरे cos A plus B plus cos A minus A plus B A minus B। So it will be cos 10 pi by 30 plus cos में तो माइनस वो हजम कर लेता है, so it will be 8 pi, so let minus 8, तो हमने इसको ऐसे रखा। अब देखो हमको तो ये दिख गया कि ये दोनों क्या है, व्हाट इज दिस टू आर सप्लीमेंट्री, दोनों ऐड करने से क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, पाई माइनस दिस इज दिस वन, पाई माइनस दिस वन, इन दोनों को ऐड करने से भी पाई हो गया, खत्म। दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस 3 पाई बाई 30, साथ में cos 3 पाई बाई 30, सप्लीमेंट्री दोनों एक साथ रखा। और इसको 8 पाई को cos पाई माइनस 5 पाई बाई 30, उसको प्लस cos 5 पाई बाई 30। ध्यान देना पड़ेगा अभी ये सब में कि कोई दोनों ऐड करके पाई हो रहा है, फिर कोई दोनों ऐड करके cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, खत्म। This will be minus. So everything will get cancelled. This. Final answer is 0. चलो ये पेज कर लो, सेकंड वाला भी ट्राई करो। बारीते एनसीईआरटी वी नीड टू कंप्लीट, ठीक है, पूरा कंप्लीट चाहिए हमको एनसीईआरटी। मंडे नहीं होगा तो नेक्स्ट वेडनेसडे के अंदर तो होना चाहिए, ठीक है। मंडे को कुछ डाउट्स होगा तो विल सी द डाउट, संडे को कुछ डाउट्स होगा तो विल सी द डाउट्स। हम नहीं चाह रहा था एक्चुअली संडे को नया स्टार्ट करें, विल स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे कुछ। तो संडे अगर एनसीईआरटी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा तो सारे डाउट्स यू कैन सी। एनसीईआरटी का डाउट देखते देखते क्लास चला जाएगा along with miscellaneous। बाकी करो रे बेटा। टू sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 into sin x cos c minus cos d, 2 cos c minus cos d means isoequation, 2x sin d minus c। প্রুফের দিকে লক্ষ্য রাখবার সময়, হ্যাঁ।
ऐसे ना। चलो आज के लिए इतना ही। cos c प्लस cos d sin c माइनस sin 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 इसका होल स्क्वायर sin c minus sin 2 cos c plus d by 2. This is cos. इन दोनों में से 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 कॉमन जाएगा। यहाँ पर बनेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। ये तो 1 है, आंसर आ गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, एनसीईआरटी कर लेना। ठीक है, जो डाउट्स होगा दैट यू विल सी ऑन संडे।